Good morning, students, and welcome to all of you for this wonderful lecture of income from salary. The most important topic of income tax there, business taxation there. So we are starting with this topic, that is income from salary. Students, we all know that this comes under the direct taxation there. What is direct taxes is nothing but where the tax is collected directly from the people and there won't be any involvement of the intermediary. That is called as direct tax. What we have seen there. So what is income from salary? What are the different components there? Do remember, learning this topic is always advantageous. You may be saying why? Because it is very imperative that you can feel your own income tax returns after learning this particular topic. Actually, how many heads are there as far as earning income by any individual is concerned? So there are 5 heads, and out of that the most important is income from salary. A person can earn income from all these 5 sources which you can see on the screen there. Number 1 is income from salary, that is you are an employee and employed somewhere, so obviously you are going to draw the salary in different types of allowances, perquisite, gratuity, pension and a number of other benefits. Being an employee there, that comes under income from salary. Another, students, that is income from house property. When you are having the properties which you have rented either for commercial or residential reasons, that comes under income from house property. Means if you are having any properties which has been rented or let out for commercial or residential reasons, that income falls under this particular category which is called as income from house property. The third source of income is income from business and profession, that you being the businessman or you being the professional, if you are drawing the income there, then that comes under income from business and profession. Fourth is income from capital gains, that you purchased certain assets, may it be gold, silver, shares, land, flat, and then you are selling it at either profit or loss, then that comes under income from capital gain. And last but not the least, that is income from other sources. This is also called as residual income or casual income. Now what is residual income or what is casual income or what is other sources? That any income which doesn't fall in any of the first 4 heads of income, that is neither in salary nor in house property, neither in business and profession nor in capital gain, then that is categorized under income from other sources, which is popularly also known as casual income or residual income. Now you may be thinking, what comes under this? Winning from lotteries, betting, gambling, horse racing, card games, KBC, all reality shows income is categorized under income from other sources. So these are the 5 sources of income. Do remember, students, in India, the tax is not charged on individual income, it is charged on total income of an assessee. And total income is nothing but comprising all these 5 sources of income. याद रखिए बेटा, जब भी हमें टोटल इनकम निकालना है तो हमें ये पांचों का टोटल करना है. पांचों का टोटल मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी प्लस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ये पांचों को मिलाएंगे तब जाके आप एक इनकम निकाल पाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज टोटल इनकम और टोटल टैक्सेबल इनकम उसको बुलाया जाता है. अब टैक्स ये टोटल इनकम पे चार्ज किया जाता है बेटा, याद रखिए. बहुत लोगों को पता नहीं होता, उनको लगता है कि टैक्स तो लगेगा सिर्फ सैलरी इनकम पे. नो, it is wrong. Tax is charged not on individual income, it is charged on total income. ये टोटल इनकम पे चार्ज किया जाता है. टोटल टैक्सेबल इनकम के बजाय इसको हम क्या बुलाएंगे? दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस टोटल इनकम इज द बेसिक वर्ड हियर. आप इसको अटक कर सकते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई इसको बुलाते हैं बेटा. जीटीआई के बाद कुछ डिडक्शन आप दे सकते हैं विच आर अलाउड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961. याद रखिए, इंडिया में बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं. इनकम टैक्स आप पे बड़ा मेहरबान है और आपको डिडक्शंस देता है. तो दीज आर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U. ये सारे डिडक्शन आप सब ले सकते हैं, बट प्रोवाइडेड दैट यू आर absolutely doing certain savings, then only these deductions are applicable for you, otherwise not. So gross total income minus deductions under section 80C to 80U, और उसके बाद जो इनकम आपका आएगा, this is your total taxable income, my dear. So this is what the idea here. तो ये हमें सब पढ़ने, पांचों हेड आपके लिए पढ़ने बेटा. और याद रखिए, जब तक आप पांचों हेड नहीं पढ़ेंगे तब तक आप टैक्स लायबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे किसी का भी. तो हमें पांचों हेड ऐड करने हैं. सो यू मे बी सेइंग आपके 5 इनकम नहीं है, देन वट एवर मे बी 2-3 सोर्सेस आर देयर, ऑल दोज आर एडेड. And not necessary that every person should have all these sources of income. You may have 2 sources, so add them. You may have 3 sources, then add them. If you are having 4 sources, add all of them. If you are having only 1 source, then उसी को ग्रॉस टोटल इनकम माना जाएगा. जैसे आपका सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी है और वही ग्रॉस टोटल इनकम है, so that way around it can go ahead.
So see the first line, tax is charged on total income of an RCC students, and total income is nothing but the income which is coming after deduction under section 80C to 80U. इसी को हम क्या बोलते हैं? Popularly this is known as that is deductions from GTI. इसी को deductions from GTI ऐसा भी बोला जाता है, आप देख सकते हैं. Deductions from GTI, that is deductions from gross total income. So gross total income में से आप ये deductions minus करेंगे. The same are called as deductions under chapter 6(1). इसी को deductions under chapter 6A बोला जाता है बेटा. तो ये सारे deductions को chapter 6A भी बोला जाता है, याद रखिए. So all these are nothing but the deductions which are given here, and at the same time you can avail them provided you have done all the savings. आपने अगर सारी सेविंग की है तो आप ये सारे डिडक्शन ले सकते हैं. फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और हर इंडिविजुअल के लिए इसेंशियल है. तो इंडिया में टैक्स इज नॉट चार्ज ऑन इंडिविजुअल इनकम, टैक्स इज चार्ज ऑन टोटल इनकम ऑफ एन आरसीसी. एंड हाउ द टोटल इनकम इज कैलकुलेटेड? टोटल इनकम इज नथिंग बट द टोटल ऑफ ऑल 5 सोर्सेस ऑफ इनकम, राइट फ्रॉम सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस बिजनेस एंड प्रोफेशन प्लस कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्सेज. ये पांचों मिला के आपका ग्रॉस टोटल इनकम होगा स्टूडेंट्स. अब ग्रॉस टोटल इनकम से इनकम टैक्स अथॉरिटीज आप पे बड़ी मेहरबान है, वो आपको डिडक्शंस अलाउ करते हैं. जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं, मेडिक्लेम लेते हैं, आपको चैरिटी करते हैं, आप आपके बच्चों का ट्यूशन का फीस भरते हैं. ऑल दीज आर नथिंग बट कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U. आपने घर बनाया, लोन लेके उस पर इंटरेस्ट भरते हैं तो उसका भी डिडक्शंस अलाउड है. दिस ऑल्सो कम्स अंडर one of the deductions which is applicable here. अब ये डिडक्शन माइनस करने के बाद जो इनकम बनता है उसको हम टैक्सेबल इनकम बुलाते हैं, जिसपे टैक्स लगता है. ऊपर देख सकते हैं, फिर से रिपीट करता हूं. टैक्स इज चार्ज ऑन टोटल इनकम ऑफ एन आरसीसी एंड एज पर 1961, as per Tax Act, Income Tax Act 1961, Section 5 provides the basis for computation of total income. ये जो सेक्शन 5 है बेटा इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, ये बताता है कि टोटल इनकम कैसे निकालना है. तो टोटल इनकम कैसे निकालना है जस्ट हमने देखा. टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द आरसीसी. इसके लिए बेटा आपको मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस का लेक्चर देखना पड़ेगा, दैट इज देयर ऑन द यूट्यूब. सो प्लीज सी दैट लेक्चर, दैट हाउ द रेसिडेंशियल स्टेटस इज conferred as far as an individual is concerned and individual assessee is concerned. Total income is based on residential status of the assessee in the relevant previous year. याद रखिए बेटा, हमारा relevant previous year है 22-23 और हमारा असेसमेंट ईयर है 23 और 24. आप बोलेंगे रनिंग ईयर ही आपका प्रीवियस ईयर होता है और आपका नेक्स्ट ईयर आपका असेसमेंट ईयर होता है. सो दैट वे अराउंड यू कैन कैलकुलेट दिस टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम. अब आगे हमें चलना है और देखना है क्या दिया है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हेड ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम सैलरी. अब जब हम ये सारा निकालने जाते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सैलरी से. देखिए सैलरी में क्या दिया है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हेड ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम सैलरी. सेक्शन 15, 16 एंड 17 ऑफ द एक्ट डील्स विद सैलरी इनकम. तो सैलरी इनकम कौन से सेक्शन में देखा जाता है बेटा? आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. सैलरी इनकम इज सीन अंडर सेक्शन 15, 16 एंड 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो सेक्शन 15, 16, 17 आपको सैलरी इनकम बताते हैं. अब सैलरी का मतलब क्या होता है, सीधे साधे शब्दों में आपको समझाता हूं स्टूडेंट्स. सैलरी इज नथिंग बट द फर्स्ट वन इज बेसिक सैलरी. सबसे पहले याद रखिए, शुरुआत करनी है आपको बेसिक सैलरी से, बेसिक पे के साथ जो यहाँ पे लिखा है. सेकंड इज एनी काइंड ऑफ पेंशन और एन्युटी विच विल बी रिसीविंग आफ्टर रिटायरमेंट, दैट इज कंसिडर्ड एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सैलरी. ये सैलरी को हम अगर इजीली डिफाइन करें कि सैलरी में क्या क्या आता है, चलो जरा सा इजी कर लेता हूं मैं आपके लिए और ये सारा लिख लेता हूं बेटा. सबसे पहले बेसिक या बेसिक पे या बेसिक सैलरी. दूसरा क्या आना चाहिए, एक्चुअली दूसरा आना चाहिए बेटा अलाउंसेस. थोड़ा सा सीक्वेंसिंग यहाँ पे चेंज करता हूँ, जो हमें जिस तरह से लेना है उसी तरह से यहाँ पे लेता हूँ बेटा. सेकंड इज अलाउंसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ अलाउंसेस वी आर सपोज टू सी. थर्ड इज यू कैन से इट इज एडवांस और एरियर सैलरी. शायद नीचे कहीं पे दिया होगा, यस इट इज गिवन देयर, नीचे दिया हुआ है. जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ बेटा, थोड़ा सीक्वेंस बदल रहा हूँ ताकि आपको इसको आसानी से समझ ले. सो बेसिक सैलरी, देन इट इज अलाउंसेस, then next is any advance or arrear salary. उसके बाद any gratuity directly. along with that you can say that annuity or pension. उसके बाद उसको annuity और pension भी आप बुला सकते हैं, that is another thing. उसके बाद क्या दिया है उन्होंने, any fees, commission और profit in lieu of salary in addition to salary or wages. मैं यहाँ से perquisite निकाल देता हूँ बेटा, क्योंकि perquisite is altogether separate head which we need to see separately. इसको हमें separately देखना चाहिए, बड़ा important है. Any fees, commission, profit in lieu of salary, in addition to salary or in lieu of salary or wages. Simply मैं इसको इतना complicated करने के बजाय यहाँ पे लिख सकता हूँ फीस, कमीशन और
bonus fees and commission, that is much better head here. Bonus comma fees and commission, so this is the next head here as far as the next component of salary. ये सारे component हमें डिस्कस करने बेटा और बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. सो सबसे पहले बेसिक सैलरी, उसके बाद अलाउंसेस हमें देखने हैं, उसके बाद एनी टाइप ऑफ एडवांस और एरियर सैलरी, उसके बाद एन्युटी ऑफ पेंशन, नेक्स्ट इज ग्रेचुटी, बोनस फीस एंड कमीशन, उसके बाद हमें देखना है परक्विजिट्स ऑब्वियसली which are popularly called as perks and at the same time these are called as fringe benefits. इसको fringe benefits भी बुलाते हैं स्टूडेंट्स, इसी को perquisites बुलाते हैं, याद रखिए. और ये क्या होते हैं हमें देखना है शॉर्टली. what is perks, what is perquisites, all these things need to be seen. मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा आपको. so what is allowances, वो तो हमें इमीडिएटली देखना है. उसके पहले मैं आपको perquisites बताता हूँ. An employee is getting salary, we all know that. But apart from salary, if you are getting other benefits, say you are getting a car along with a driver, you are getting a house along with domestic servant, your children education is sponsored by the employer, your foreign tours are sponsored by the employer. ये सारा आप enjoy करते हैं और पैसा देता है employee. यानी जहाँ पे पे करने की बारी आती है employer देता है और आप बस enjoy करते हैं. That is called as perquisites. Do remember students, perquisites are nothing but the benefits which are over and above cash salary. Perquisites क्या होते हैं बेटा? The benefits which are provided by the employer to the employee over and above cash salary are called as perquisites. लेक्चर को ध्यान से देखना बेटा, पूरा सैलरी समझना है तो. उसके पहले आपने बेसिक देखा, तो ये तो बेसिक सैलरी है जो ऑफर की जाती है एम्प्लॉयर से. What is allowances? So allowances is nothing but the part and parcel of salary which is fixed, predetermined and given irrespective of the fact that whether it is paid in addition to salary or in lieu of salary. मतलब allowances क्या होते हैं? एक certain amount आपको दी जाती है as you are a salaried employee. ये fixed होते हैं, predetermined होते हैं और साथ ही याद रखना बेटा, आप इसको खर्च करो या ना करो, इतना ही अलाउंस आपको हर बार दिया जाता है. से फॉर एग्जांपल यू आर गेटिंग एंटरटेनमेंट अलाउंस, सो इट डजंट मीन दैट एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आपको 1 लाख मिल रहा है साल का तो आपने 1 लाख ही खर्च करना चाहिए. आप 1 लाख से ज्यादा कर सकते हैं, 1 लाख से कम कर सकते हैं, बट इट इज फिक्स्ड अमाउंट व्हिच विल बी गेटिंग एवरी टाइम. सो अलाउंसेस आर फिक्स्ड, predetermined and given irrespective of the actual expenditure. So that is what allowance is there. Advance or arrear salary, बड़ा आसान concept है बेटा. We are running in September 2022. Say I got the salary from the college for October 2022. अभी तो महीना चालू होना है, काम करना बाकी है वो महीने के लिए, लेकिन एम्प्लॉयर ने मुझे सैलरी दे दी अक्टूबर 2022 की. दिस सैलरी इज टर्म्ड एज एडवांस सैलरी माय डियर. इस सैलरी को हम एडवांस सैलरी टर्म कर सकते हैं. एरियर सैलरी, ऐसा मान लेते हैं कि कोरोना के टाइम की कुछ सैलरी बाकी है, वैसे तो बाकी नहीं है, कॉलेज ने बड़ा टाइम पे दिया है, तो कोरोना के टाइम पे अगर कुछ सैलरी बाकी है एंड दैट इज कॉल्ड एज एरियर सैलरी एंड दैट इज पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ, देन आई कैन से दैट इज एरियर सैलरी व्हिच इज राइट नाउ रिसीव्ड. तो उसको एडवांस और एरियर सैलरी बोलते हैं. आई होप यू आर गेटिंग दिस. Perquisites I just explained, these are nothing but benefits of salary over and above cash salary which are given in the form of kinds. For example, a rent-free house along with the servants, a motor car along with the driver, along with petrol allowance and all those things where everything is borne by the employer. Benefits are enjoyed by the employee. सीधी बात है बेटा, बिल फटेगा एम्प्लॉयर के नाम पे, एम्प्लॉय एंजॉय करेगा. मेडिकल फैसिलिटी, मे बी यू कैन से दैट क्लब हाउस फैसिलिटी, जिम फैसिलिटी, फॉरेन टूर एंड ट्रैवल्स, घर प्लस domestic servants, car plus driver, all these facilities are provided in the form of perquisites by the employer to the employee are called as perks, fringe benefits or perquisites. So that is what it is there. Next is gratuity my dear. Gratuity is what? Gratuity is a loyalty benefit which is given by the employer to the employee. Gratuity क्या है? ये loyalty benefit है, employer employee को देता है for completing at least 5 years of consistent service in the same organization. Gratuity कब payable होती है बेटा? कम से कम 5 साल की सर्विस करने के बाद gratuity payable होती है, or else on the unfortunate death or retirement of the employee, whichever is earlier you can say. या तो आपके 5 साल होनी चाहिए, या तो आपकी उसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्सीडेंटल प्रॉब्लम, आपको डेथ होना चाहिए, रिटायरमेंट होना चाहिए, देन इन दैट केस ग्रेचुटी इज पेबल. डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, ग्रेचुटी इज अ लॉयल्टी बेनिफिट. पेंशन हम सबको पता है, पेंशन इज नथिंग बट अ retirement benefit which is given by the employer to the employee after her or his retirement. So that is what pension you can say. So and bonus fees commission, ये तो हम सबको पता है. bonus fees commission are nothing but again part and parcel of the salary there which is given by the employer to the employee. perquisites हमने just देखा, जिसको perks भी बुलाया जाता है, ये चॉकलेट से कोई लेना देना नहीं बेटा. these are perquisites which are provided over and above cash salary. cash salary छोड़ के जो दिया जाता है उसको हम perquisites बुलाते हैं.
उसी को पर्क्स बुलाते हैं, उसी को फ्रिंज बेनिफिट्स बुलाते हैं। नेक्स्ट इज लीव एनकैशमेंट स्टूडेंट्स, एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम ड्यूरिंग द सर्विस, दैट इज कॉल्ड एज लीव एनकैशमेंट। वैसे ही आजकल लीव एनकैशमेंट होती है, बट हम इतना बीबीए के लेवल पे इसको इतना देखना नहीं है, हमें बीकॉम के लेवल पे दिस इज गोइंग टू बी सीन इन मच डेप्थ for CA intermediate or CWA there, so we don't have much of the components to see here as far as leave encashment, but do remember students, leave encashment is part and parcel of your salary as well. Next to that, the total sum accredited to the credit of the employee towards recognized provident fund. So provident fund is again another composition. अब ये provident fund क्या होता है? Provident fund is nothing but a mandatory saving for all salaried employee for their future well-being. आपकी सैलरी से कुछ पार्ट काटा जाता है, एम्प्लॉयर का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, ये गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। ऑब्वियसली जब आप इन्वेस्टमेंट बात कर रहे हो तो उस पर रिटर्न मिलना मैंडेटरी है बेटा। सो ये जो कंट्रीब्यूशन है आपका पीएफ का, उस पर आपको मिलता है इंटरेस्ट, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ बाय द एम्प्लॉयर बाय द एम्प्लॉई एंड देन इंटरेस्ट ऑन द सेम, ऑन दिस यू आर सपोज टू रिसीव इंटरेस्ट। So it is employer contribution to PF, employee contribution to PF and then interest on PF. All these three things will be added और ये taxability इसका हम decide करेंगे ये particular component में बेटा, that is component number 9 and last that is transferred balances in provident fund। जब ये प्रोविडेंट फंड 10 साल 15 साल कभी तो विड्रॉ करेंगे तो उसका चार्जेबिलिटी टैक्स का कैसे होता है, दैट इज वी आर गोइंग टू सी। तो देखिए बेटा, सैलरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सैलरी। ये सैलरी का डेफिनेशन है बेटा, देखिए क्या है सैलरी में क्या आता है, बेसिक सैलरी और बेसिक पे सबसे पहले, सेकंड ऑल अलाउंसेस, थर्ड इट इज यू कैन सी दैट बोनस फीस एंड कमीशन, fourth advance and arrear salary, fifth is pension, sixth is gratuity, seventh is perquisites which you can see here, eighth is provident fund and along with all three contribution, employee contribution and interest on PF और सबसे आखिरी में बेटा आता है आपका लीव एनकैशमेंट। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये सारे कंपोनेंट हमें देखने हैं, बस थोड़ा सा आसान आपके लिए करता हूँ, कुछ कंपोनेंट को मैं यहीं पे गायब कर देता हूँ ताकि आपका समझना और आसान हो जाए। बेसिक सैलरी, along with that advance and arrear salary, along with that bonus fees and commission, इनको अभी लिस्ट में कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें हमें बड़ा टाइम लेगी, आप बोल सकते हैं बड़ा आपको उसको टाइम देना पड़ेगा तब जाके आप सीख पाएंगे। तो ये जो एक्सक्यूज मी सैलरी का मीनिंग है बेटा, इसमें से 3 चीजों को हमें छोड़ देना है। क्यों? दीज आर फुली टैक्सेबल माय डियर, जैसे ही दिखते हैं वैसे ही उठा के लेना है, उनको प्रणाम करना है और ऐड करके लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटी सेज दैट दीज थिंग्स आर फुली टैक्सेबल, नो रूल्स आर एप्लीकेबल टू देम। इनको देखा कि एज इट इज प्रणाम करना है और इनको टैक्सेबल करके ले लेना है, क्योंकि ये पूरी तरह से टैक्सेबल होते हैं। तो एक रूल यहाँ पे लिख सकते हैं, हम नोट लिख सकते हैं, दैट इज बेसिक सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, एडवांस एंड अरियर सैलरी आर ऑलवेज फुली टैक्सेबल पार्ट्स ऑफ सैलरी इनकम। मतलब इनके लिए हमें कोई रूल देखने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों को मैंने हाईलाइट करके छोड़ दिया बेटा। अभी बाकी के जो चीजें हैं मतलब वो हमें ध्यान से देखनी पड़ेगी। उसमें सबसे पहला आता है अलाउंसेस, उसके बाद आता है ग्रेचुटी एंड पेंशन, उसके बाद परक्विजिट्स, फिर लिव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड, ऑल दीज थिंग्स वी आर सपोज टू सी एंड दैट इज हाउ यू कैन सी दैट सैलरी विल बी कंक्लूडेड। तो याद रखिए बेटा, सैलरी में सबसे पहली चीज याद क्या रखनी है, पहले हमने मीनिंग ऑफ सैलरी देखा 17 अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, और वहां पे हमने देखा कि सैलरी के इतने सारे कंपोनेंट है और इतने सारे कंपोनेंट में क्या है बेटा, व्हाट इज टैक्सेबल एंड व्हाट इज नॉट टैक्सेबल। तो हमने ये देखा दैट इज बेसिक सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, एडवांस एंड अरियर सैलरी आर ऑलवेज फुली टैक्सेबल। बेसिक सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, एडवांस एंड अरियर सैलरी आर ऑलवेज फुली टैक्सेबल। तो इसके लिए कोई रूल अप्लीकेबल नहीं है। अब इसके आगे चले जाएंगे तो 1 बाय 1 हमें कंपोनेंट वाइज इसको पढ़ना है और इसको समझना है बेटा। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं अलाउंसेस के साथ। श्री गणेशाय नमः। वी आर स्टार्टिंग विद अलाउंसेस देयर, द वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, यू कैन से दैट the most important part of salary there as far as allowances are concerned। तो चलिए अलाउंसेस के साथ शुरुआत करते हैं बेटा और देखते हैं अलाउंसेस क्या है। लेकिन अलाउंसेस से पहले उन्होंने बताया है कि सैलरी की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, how the taxability of salary is going to differ। So they are given basis of chargeability section 15, यानी सैलरी टैक्सेबल कैसे होती है सेक्शन 15 में ये दिया है। सो हाउ सैलरी इज टैक्सेबल। अब इतना सारा पढ़ने के बजाय आप अगर पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे तो बड़ा आपका बेनिफिट होगा बेटा यहाँ पे, और वही सारा सार है
जैसे गीता सार बोलते हैं वैसे ये बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी टैक्सेबिलिटी का है, किसका? सैलरी का। सैलरी में इतना पढ़ेंगे तो काफी है। क्या दिया है देखिए बेटा, समिंग अप एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 द अमाउंट ऑफ सैलरी ड्यू, एडवांस एंड एरियर सैलरी रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर from the present or the former employer is considered while calculating income from salary। एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा। What is the previous year? Previous year is nothing but the financial year in which income is earned by the assessee or the person। The financial year in which income is earned by the assessee or the person। हमारा financial year है बेटा, previous year है 22 और 23 और हमारा assessment year होगा 23 और 24। That way around we are going to calculate it। तो ये क्या बोल रहा है, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। मतलब 12 महीने की सैलरी तो आपको पक्की मिलनी चाहिए। अब फिर वो ड्यू हो, रिसीव्ड हो या एडवांस में मिली हो, 12 महीने की सैलरी तो कहीं नहीं जाने वाली बेटा। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन आपको है कि एक साल में एक बंदे को सैलरी कितने महीने के लिए मिल सकती है? योर आंसर्स स्टूडेंट्स, इट कैन बी 9, इट कैन बी 12, इट कैन बी 15। ऐसा हो सकता है या 12 ही होना चाहिए, या ऐसा हो सकता है कि एक साल में आपको 9 महीने की सैलरी मिली है, 12 की मिली है या 15 की मिली है। तो सारे आंसर पॉसिबल है बेटा। ऐसा क्यों? आप पॉइंट नंबर 5 देख सकते हैं, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस व्हिचएवर कम्स अर्लियर बट इट शुड बी टैक्स्ड ओनली वंस। अब आप बोलेंगे सर हमने एक साल में 2-4 एम्प्लॉयर के साथ काम किया, लेकिन 12 महीने ही काम किया बेटा। भले आपने 2 एम्प्लॉयर के साथ काम किया, दैट इज योर प्रीवियस एम्प्लॉयर एंड योर करंट एम्प्लॉयर, फिर भी सैलरी तो 12 महीने की लेंगे। लेकिन आप बोलेंगे फिर 9 महीने की सैलरी कैसे आप टैक्सेबल बोल रहे हैं? सपोज आपको लास्ट ईयर में एडवांस सैलरी दिया गया था बाय योर एम्प्लॉयर फॉर 3 मंथ्स, तो लास्ट ईयर आपको 12 की बजाय 15 महीने की सैलरी मिली थी। अब ये साल सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस व्हिचएवर कम्स अर्लियर। तो पहले एडवांस पे मिल गई आपको तो 15 महीने का सैलरी पे टैक्स लग गया। क्यों? बिकॉज सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस व्हिचएवर कम्स अर्लियर। तो लास्ट ईयर आपको 12 का तो मिला ही मिला, उसके साथ 3 महीने का एडवांस मिला, तो सैलरी टैक्स हो गई 15 महीने की लास्ट ईयर। तो करंट ईयर क्या होगा बेटा? करंट ईयर आपकी सैलरी सिर्फ 9 महीने की टैक्स होगी। क्यों? बिकॉज सैलरी वॉज ऑलरेडी टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस इन द लास्ट ईयर। करंट ईयर इट विल बी टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू, on the basis of due or received whichever comes earlier। तो आपका ड्यू और रिसीव्ड दोनों देखा जाए तो 9 महीने का ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये साल की 3 महीने का सैलरी आपको पिछले साल ही मिल गया था, तो अभी मिलने का कोई सवाल नहीं है। ड्यू और रिसीव्ड whichever comes earlier, तो अभी 9 महीने का ही सैलरी है बेटा, तो और 9 महीने का ही सैलरी पे टैक्स लगेगा, जबकि पिछले साल 15 महीने पे लगा था। तो सैलरी कैन बी टैक्सेबल ऑलवेज, इट कैन बी फॉर मोर देन 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स और इट कैन बी 12 मंथ्स एज वेल। तीनों ऑप्शन पॉसिबल है कि सैलरी 12 के 12 महीने की टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि नो एरियर नो एडवांस सैलरी, 12 महीने की सैलरी एम्प्लॉयर ने आपको दी, आपको मिली और उसी साल में टैक्सेबल है। अगर आपको एडवांस में सैलरी मिली तो ये साल में एडवांस वाले ऐड हो जाएंगे, अगले साल एडवांस वाले महीने कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये साल की जो एडवांस में मिली थी अब ये साल में तो कंसिडर नहीं होने से रही। क्यों? बिकॉज इट इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस व्हिचएवर कम्स अर्लियर। तो ये बड़ा पॉइंट याद रखिए बेटा। तो याद रखिए सैलरी एक बार ही टैक्स होती है, या तो ड्यू पे होगी या तो रिसीव्ड पे होगी, व्हिचएवर कम्स अर्लियर, एंड दैट इज व्हाट द पॉइंट फॉर बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। और ये भी याद रखिए कि एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आप एक एम्प्लॉयर के अंडर, 2 एम्प्लॉयर के अंडर, 3 एम्प्लॉयर के अंडर भी काम किए, तो सैलरी या तो 12 महीने की टैक्स होगी, 12 महीने से ज्यादा हो सकती है या 12 महीने से थोड़ा कम हो सकती है, बिकॉज ऑफ एडवांस एंड एरियर सैलरी। सो डू रिमेंबर स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4 and 5 which are very important, which says that as per the provisions of section 15 the amount of salary due, arrear salary and advance salary received from the present or former employer is considered as part of salary income, and at the same time salary is taxable on due or receipt basis whichever comes earlier। तो ये दोनों चीजों को गांठ बांध के चलिए और याद रखिए कि एक साल में सैलरी कितने महीने की टैक्स होती है? 12 महीने की, यस। 12 महीने से ज्यादा की, वो भी यस। 12 महीने से कम की, वो भी यस हो सकता है। So all 3 answers are possible depending on whether you are having arrear or advance salary। अब देखते हैं the most important part my dear। तो हमने सैलरी में से क्या क्या बाजू में किया था? हमने बाजू में किया था बेसिक सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, एडवांस एंड एरियर सैलरी आर ऑलवेज फुली टैक्सेबल पार्ट्स ऑफ सैलरी इनकम। तो आप ये नोट लिख सकते हैं बेटा ऊपर कहीं पे, तो आपका काम और आसान हो जाएगा और हम ये पढ़ते पढ़ते और इसको एंजॉय कर सकते हैं। सो लेट मी राइट डाउन एन इंपॉर्टेंट नोट हियर फॉर ऑल ऑफ अस। An important note, what can be written everybody, that the note is basic salary, bonus, fees, commission, advance and arrear salary are always fully taxable parts of salary income। तो इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा।
तो हमें बस ये लिखना है और आगे चलना है। बेसिक सैलरी स्टूडेंट्स दैट यू कैन सी, बोनस कॉमा फीस कॉमा कमीशन एंड एडवांस सैलरी एंड एरियर सैलरी। ये ऐसे कंपोनेंट्स है जो आपके पूरी तरह से टैक्सेस होंगे, जिस पर टैक्स लगेगा बेटा। सो बेसिक सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, एडवांस सैलरी एंड एरियर सैलरी आर ऑलवेज फुली टैक्सेबल पार्ट्स ऑफ सैलरी इनकम, आर ऑलवेज फुली टैक्सेबल पार्ट्स ऑफ सैलरी इनकम। मतलब आपको इसके लिए कोई रूल देखने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके इनको पूरी तरह से टैक्स करना है। दैट इज व्हाट इनकम टैक्स अथॉरिटीज सेज। मतलब यहाँ पे कोई और रूल अप्लाई होगा ही नहीं बेटा। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, बेसिक सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, एडवांस एंड एरियर सैलरी जब भी दिखता है तो इसको एज इट इज ले लीजिए, एंड इट इज फुली टैक्सेबल पार्ट्स ऑफ सैलरी इनकम। दैट इज व्हाट गिवन हियर। आगे क्या दिया है देख सकते हैं बेटा, दैट इज अलाउंसेस। एंड अब हमने देखा कि ये 6 पार्ट तो हमें एज इट इज टैक्सेबल लेने हैं, तो हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें पढ़ना है अलाउंसेस, उसके बाद परक्विजिट, फिर ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, लिव एनकैशमेंट, ये 6 चीजें पढ़नी है। और उसके बाद हमें देखने हैं डिडक्शंस अंडर सैलरी इनकम, द सेम आर कॉल्ड एज डिडक्शंस फ्रॉम सेक्शन 16। एंड देन वी कैन अराइव एट what we can arrive at, we can arrive at income from salary or you can say net salary। तो पहले ग्रॉस सैलरी आएगी। ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या है बेटा, बड़ा सीधा साधा मतलब है, ये देखिए, ये सारी चीजों को आप अगर ऐड करेंगे, ये 10 की 10 चीजों को, देन दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस सैलरी माय डियर। तो यहां पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं और ये 10 के 10 कंपोनेंट ऐड करता हूं, that is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10, ये सारों को ऐड करूंगा बेटा तो मैं इसको बुला सकता हूं ग्रॉस सैलरी। लेस व्हाट स्टूडेंट्स, लेस इज डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, और इसी को हम डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी इनकम बुलाते हैं बेटा। याद रखिए, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 और द सेम इज कॉल्ड एज डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी इनकम। इसी को बोलते हैं बेटा डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी इनकम। तो याद रखिए, सैलरी इनकम के डिडक्शंस या डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 आर वन एंड द सेम, और ये डिडक्शन आप माइनस करेंगे तो आएगा आपका नेट सैलरी। डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी इनकम, ऐसा भी टर्म इसको दिया जाता है। और जब ये माइनस करेंगे आप, तो आप बता सकते हैं कि दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर नेट सैलरी माय डियर। इसी को आप आपका नेट सैलरी बता सकते हैं। मैं आप अभी भी टैक्सेबल सैलरी पे नहीं गया हूं बेटा, इसको नेट सैलरी बता दे, याद रखिए। तो दिस इज हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर देयर, डू रिमेंबर स्टूडेंट्स। सो ग्रॉस सैलरी, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 और डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी इनकम, एंड दैट इज कॉल्ड एज नेट सैलरी। इसको आप क्या बुलाते हैं, नेट सैलरी बुलाते हैं, और इस तरह से चलेगा आगे। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेट ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम सैलरी, जो हमें सेक्शन 15, 16 और 17 में देखना है बेटा। और इसमें के 6 कंपोनेंट तो हमने गायब कर दिए क्योंकि वो पूरे टैक्सेबल है, एज इट इज उठाने। सो बेसिक सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, एडवांस एंड एरियर सैलरी अलॉन्ग विथ bonus, fees, commission, basic salary, any advance and arrear salary, all these are fully taxable। अब चलते हैं अलाउंसेस पे। तो ये सैलरी का ढांचा है बेटा, ये 10 के 10 कंपोनेंट हमें कंसिडर करने हैं, उसको ऐड करना है, फिर ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन माइनस करने हैं, फिर आएगा आपका नेट सैलरी। अब वन बाय वन अपन कंपोनेंट देखते हैं स्टूडेंट्स, और उसका मीनिंग देखते हैं और वो किस तरह से है वो भी देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट तो हमने देख ली, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी देख लिया। अब आते हैं अपने काम पे, अलाउंसेस पे। अलाउंसेस क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही अलाउंसेस को डिफाइन किया था बेटा। ये देखिए सेकंड लाइन और थर्ड लाइन देखिए, मैं बार बार बोल रहा था, अलाउंसेस आर फिक्स्ड, प्रीडिटरमाइंड एंड गिवन irrespective of the actual expenditure. It is also taxed on due or receipt basis whichever comes earlier, but it should be taxed only once। अब अलाउंसेस देखते हैं क्या दिया है डेफिनेशन। अब अलाउंसेस क्या है, इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मनी और सब्सटेंस गिवन रेगुलरली इन एडिशन टू सैलरी फॉर द सर्विसेज rendered by the employee towards the organization or for any usual or unusual conditions of the service। अब हम पूना में है बेटा, तो पूना में यूजुअल कंडीशंस ऑफ सर्विस है या अनयूजुअल है, तो पूना में यूजुअल है। ऐसा है कि बार बार बर्फ पड़ती है, ऐसा है कि बहुत ठंड है, ऐसा है कि बहुत गर्मी है, तो ये अनयूजुअल है। यहाँ पे तो सब सारे क्लाइमेट अच्छे होते हैं। अब बारिश देखो बहुत अच्छी हो रही है,
ठंड भी अच्छी पड़ेगी और फिर गर्मी भी अच्छी होगी. दैट इज नथिंग बट द नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन हियर, नॉट मच ऑफ द एडवर्स. लाइक यू कैन से द लेह लद्दाख में बड़ी एडवर्स कंडीशन है. तो वहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं, मे बी एम्प्लॉयमेंट में हो या मिलिट्री में हो, तो उनके कुछ अलाउंसेस पे किए जाते हैं फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड फॉर अनयूजुअल कंडीशंस ऑफ दैट सर्विस. तो अलाउंसेस का डेफिनेशन, फिक्स क्वांटिटी ऑफ मनी और सब्सटेंस which is given regularly in addition to salary or in lieu of salary, and it is given for the sacrifices which has been done by the employee towards the employment for usual or unusual conditions of that service. तो उसको हम allowances बुलाते हैं बेटा. डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है, आगे के 2 लाइन जो 2 पैराग्राफ दिए, सर allowances are fixed, predetermined and given irrespective of the actual expenditure. Allowances कैसे होते हैं बेटा, फिक्स्ड होते हैं, predetermined होते हैं and these are given irrespective of the actual expenditure. Allowances are taxed on due or receipt basis whichever comes earlier under section 15, irrespective of the fact that it is paid in addition to or in lieu of सैलरी. तो ये अलाउंसेस का डेफिनेशन है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरटेनमेंट अलाउंस आपको अगर 1 लाख मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 लाख ही खर्च करें, आप उससे ज्यादा खर्च कर सकते हैं या उससे कम खर्च कर सकते हैं. दैट डजंट मीन दैट नेक्स्ट टाइम यू विल बी गेटिंग लेस इंटरटेनमेंट अलाउंस और यू विल नॉट बी गेटिंग इट. तो ऐसा जरूरी नहीं है, आपने खर्च किया या ना किया, इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट, आपको हर बार मिलेगा, अगले साल भी मिलेगा. 3 तरह के अलाउंसेस हमें देखने बेटा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. द नंबर 1 अलाउंस इज फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, मतलब इसको आंखें बंद करके एज इट इज उठाना है और पूरी तरह से टैक्सेबल करना है. दूसरा आप देख सकते हैं बेटा, दैट इज फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस, मतलब इनको एज इट इज छोड़ देना है. गवर्नमेंट ने बहुत कम ऐसे अलाउंसेस छोड़े हैं जिस पे टैक्स नहीं लगता. और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, दैट इज पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, जहां पे हमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना है और जो काफी हमें एंजॉयमेंट देगा, दैट इज पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस. सो लेट्स सी ऑल दीज अलाउंसेस स्टूडेंट्स, कि कौन से अलाउंसेस है और किस तरह से देखना है. आप देख सकते हैं फुली टैक्सेबल अलाउंसेस नंबर 1, सेकंड इज फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस नंबर 2 एंड थर्ड इज पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस. अब आगे देखते हैं 1 बाय 1. फुली टैक्सेबल अलाउंसेस में कौन से अलाउंसेस है और इनका नाम क्या है. याद रखिए बेटा, द नेम इज नॉट आवर कंसर्न, द नेम इज नथिंग बट नेमिंग कन्वेंशन विच इज गिवन टू देम. हमें बस इतना याद रखना है कि वो फुली टैक्सेबल है, मतलब वो एज इट इज लेंगे और उसको पूरा टैक्स लगाएंगे, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है. अब इसका नाम ऐसा क्यों है, उसका पर्पस क्या है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट डिस्कशन एंड नॉट नीडेड इन इनकम टैक्स. इनकम टैक्स क्या बोलता है, पूरा टैक्सेबल है तो ऐड करो, पूरा एग्जम्प्टेड है तो पूरी तरह से छोड़ दो, पार्टली टैक्सेबल है पार्टली एग्जम्प्टेड है तो जितना टैक्सेबल है उतना ले लो, जितना टैक्सेबल नहीं है या जितना एग्जम्प्टेड है उसको छोड़ दो. दैट इज व्हाट कॉल्ड एज पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस. तो फुली टैक्सेबल अलाउंसेस में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, नंबर 1 इज डीएनएस अलाउंस, पे अलाउंस और इट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग और इंटीरियम रिलीफ अलाउंस. ये सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंस है बेटा. महंगाई मार डालेगी, महंगाई किसको नहीं है, सबके लिए महंगाई होती है. As the cost of living into the society is keep on increasing, this particular allowance is keep on increasing, which is called as DNS allowance. तो DNS allowance ये fully taxable है, याद रखिए. अब इसमें कुछ चीजें होती है जो हमें देखनी है DNS allowance की, हम देखेंगे पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्टेड के टाइम पे. अभी याद रखिए, इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, बेसिक नेसेसिटीज के दाम बढ़ रहे हैं, तो आपका डीए भी बढ़ना चाहिए. दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेड. सेकंड, सिटी कंपेंसेटरी और कैपिटल कंपेंसेटरी अलाउंस which is given as per the city there. जैसे आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप पूना काम कर रहे हैं, कोई मुंबई कर रहा है, कोई दिल्ली कर रहा है, तो मुंबई में अलग अलाउंस होगा, ज्यादा होगा, दिल्ली में उससे ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि ये टायर सिटी है, फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर एंड 3 टायर सिटीज, और यू कैन से दैट टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज. टायर 3 मेट्रो से नीचे मानी जाती है. टायर 1 मतलब मेट्रो सिटी, जिस तरह की मेट्रो सिटी है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ये 4 ही मेट्रो रहता. टायर 2 में पूना, हैदराबाद, ये सारे आते हैं. और टायर 3 में स्मॉल सिटीज आते हैं जैसे कि औरंगाबाद, अहमदनगर, लातूर, जालना, बीड. इवन along with that you can say another cities like नंदुरबार, धुले, all these cities are nothing but tier 3 cities. यहाँ पे अलाउंसेस वैरी करेगा, उसी को सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस. एक चीज याद रखिए बेटा, ये सारे अलाउंसेस फुली टैक्सेबल है. फिर उसका नाम क्या है, उसका मतलब क्या है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्ट, बट ऑल दीज अलाउंसेस आर फुली taxable. Number 1 is fully taxable. Number 1 is DNS allowance which is fully taxable. Number 2 is city or capital compensatory allowance, ये भी पूरी तरह से taxable है बेटा. Project allowance is fully taxable. Fixed medical allowance or medical allowance it is termed as, it is also fully taxable my dear. Servant allowance, next is wardenship allowance. हॉस्पिटल में जो वार्डन होते हैं
उनको ये दिया जाता है वार्डनशिप अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस, आप अगर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर वर्किंग आवर्स से 7 और 8 मोर देन दैट, देन यू आर सपोज टू गेट ओवर टाइम अलाउंस। नेक्स्ट टू दैट मैरिज अलाउंस, ऑब्वियसली मैरिज अलाउंस भी मिलता है एंड बट इट इज फुली टैक्सेबल एज फार एज इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज कंसर्न। याद रखिए बेटा, हम जो कुछ पढ़ेंगे वो सारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हमें पढ़ना है। सो मैरिज अलाउंस, फैमिली, टिफिन, लंच। आप बोलेंगे टिफिन और लंच में क्या फर्क है? हमें कोई फर्क नहीं करना बेटा, आया तो इसको एज इट इज लेना है, फुली टैक्सेबल करना है, ज्यादा इसके डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। नॉट नेसेसरी इन एवरी सैलरी स्ट्रक्चर ऑल दीज अलाउंसेस विल बी अवेलेबल। कुछ वहां पे अवेलेबल होंगे, कुछ अवेलेबल नहीं होंगे। अवेलेबल है तो उसको टैक्सेबल करना है, जितने हैं उतने एज पर द रूल्स। तो फुली टैक्सेबल अलाउंसेस है तो उसको टैक्सेबल करना है, फुली एग्जम्प्टेड अलाउंस है तो एज इट इज छोड़ देना है। पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जम्प्टेड को जितना पार्ट टैक्सेबल है उतना टैक्सेबल लेना है, जितना एग्जम्प्टेड है उसको एग्जम्प्टेड करना है। सो मैरिज, फैमिली, टिफिन, लंच ये फुली टैक्सेबल है बेटा। उसके साथ नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, हॉलीडे ट्रिप अलाउंस है, पेट्रोल अलाउंस है, डेपुटेशन और सब्स्टिट्यूट अलाउंस है, डिनर और रिफ्रेशमेंट अलाउंस है। बहुत लोगों को डाउट आता है कि ये डेपुटेशन या सब्स्टिट्यूट अलाउंस क्या होता है। जस्ट वी आर स्टडिंग इन मिडकॉम MIT ADTU, अगर यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है यहाँ पे बैंक ब्रांचेस कम है। चलो कल HDFC आ रहा है, इधर SBI आ रहा है, तो SBI एकदम से बहुत ज्यादा स्टाफ नहीं लेगा स्ट्रेंथ, तो वो सोचेगा पहले ब्रांच ओपन करते हैं और जो नजदीक का ब्रांच से हेड अफसर का जो एम्प्लॉई है वो यहाँ पे आके काम संभाले, 4-5 एम्प्लॉई, तो उनको यहाँ पे आने की खुशी में एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाएगा क्योंकि वो हेड अफसर में भी काम कर रहे हैं और थोड़ा टाइम आके यहाँ पे भी ब्रांच संभाल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज डेपुटेशन और सब्स्टिट्यूट अलाउंस। ये बैंक एम्प्लॉय के बारे में बार बार होता है। क्यों? बिकॉज बैंक इज गोइंग टू ओपन डिफरेंट ब्रांचेस एंड वंस दे आर गोइंग टू गेट अ फेयर डिसीजन अबाउट कितना स्टाफ लगेगा, तब तक वो डेपुटेशन पे काम चलाते हैं। मतलब जो नियर बाय ब्रांच है वहाँ के एम्प्लॉय आएंगे, काम करेंगे आपके साथ, तो दैट इज कॉल्ड एज डेपुटेशन और सब्स्टिट्यूट अलाउंस। लेकिन चीज जो याद रखने की बेटा, दैट इट इज फुली टैक्सेबल अलाउंस। ये पूरी तरह से टैक्सेबल अलाउंस है, डेपुटेशन और सब्स्टिट्यूट। आई होप रेस्ट ऑफ द अलाउंसेस आर वेरी क्लियर। डोंट गो ऑन देयर नेम्स, their purpose is not our concern, our concern is it is fully taxable। तो याद रखिए, DNS अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस, हॉलीडे ट्रिप अलाउंस, डेपुटेशन और सब्स्टिट्यूट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ये सारे फुली टैक्सेबल है। आप बोलेंगे सर ये याद कैसे रहेगा? जैसे हम ज्यादा से ज्यादा सम सॉल्व करेंगे ये ऑटोमेटिकली याद रहेगा। हमें सिर्फ याद रखने हैं फुली एग्जम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जम्प्टेड, बाकी तो फुली टैक्सेबल एज इट इज याद रहेंगे। हम फुली एग्जम्प्टेड को याद रखेंगे और पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्टेड को याद रखेंगे क्योंकि ये तो याद रखना ही पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली फुली टैक्सेबल याद हो जाएंगे। ये दोनों में जो नहीं है एब्सोल्युटली वो है फुली टैक्सेबल में। इस तरह से आगे चलना है। नेक्स्ट इज फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस माय डियर। 4 अलाउंसेस है। मजाल है कि किसी कॉमन इंसान को मिले, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है तो ये तो देना ही नहीं। पहला है, देखिए बेटा, फॉरेन अलाउंस गिवन टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। इसके लिए आपको गवर्नमेंट एम्बेसडर होना पड़ेगा, ये तो आसान बात नहीं है, तो ये अलाउंस आपको मिलता है तो फुली एग्जम्प्टेड है। दूसरा, सैंक्चुरी इटसेल्फ इज नथिंग बट द मीनिंग इज फुली एग्जम्प्टेड विच इज गिवन टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस। सैंक्चुरी का मीनिंग ये बेटा कि ये पूरी तरह से एग्जम्प्टेड है, तो ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज होना पड़ेगा, मिलना है तो तभी ये मिलेगा और उसको एग्जम्प्टेड कर सकते हैं। उसके बाद का अलाउंस बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, आउट ऑफ पॉकेट और आउटफिट अलाउंस विच इज गिवन फॉर NCC ऑफिसर। हाँ, ये एक कॉमन इंसान को मिल सकता है, अगर वो NCC ऑफिसर बने तो ये अलाउंस मिलेगा और इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज इट इज फुली एग्जम्प्टेड अलाउंस। द फोर्थ वन इज अलाउंसेस टू एम्प्लॉयज ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए UNO का एम्प्लॉय होना पड़ेगा। अगेन ये आसान बात नहीं है, मतलब ये कॉमन मैन की रीच के बाहर की बात है बेटा, तो ये फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस है। ये चारों तो याद रह सकते हैं। गवर्नमेंट एम्बेसडर, हाई कोर्ट सैंक्चुरी अलाउंस फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस फॉर NCC ऑफिसर्स एंड अलाउंसेस गिवन टू एम्प्लॉयज ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 अगर मिलते हैं तो फुली एग्जम्प्टेड है। ये 4 तो मिलना आसान बात नहीं है। सो दैट इज हाउ दीज आर फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस माय डियर। अब जो हमारे काम की बात है वो आ गई है, तो ये है पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस। तो इसमें हमें क्या देखना है? तो हमें सबसे पहले इसमें देखना है HRA, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस। उसके बाद हमें देखना है बेटा education allowance and hostel allowance which is given for employed children for their education and hostel needs। और फिर देखना है special allowance under section 1016(1) and special allowance under section 1016(2)। ये सारे allowances हमें देखने हैं, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। यहाँ से जर्नी, इंटरेस्टिंग जर्नी चालू होती है बेटा। याद रखिए, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस आज इट इज लेने हैं, फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस आज इट इज छोड़ देने हैं।
पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंस है, जितना टैक्सेबल पार्ट है उतना लेना है, जितना एग्जम्प्टेड पार्ट है उतना छोड़ देना है। दैट वे अराउंड वी नीड टू गो अहेड। चलिए आगे देखते हैं वन बाय वन कैसे अलाउंसेस दिए। ये देखिए, ये लाइन बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। While calculating income from salary, fully taxable allowances should be taken as it is for calculation. Fully exempted allowances should be ignored, whereas the tax treatment for partly taxable and partly exempted allowances is as follows. तो यहाँ से हमारा जर्नी शुरू होता है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस किस तरह के हैं और किस तरह से आगे जाएंगे। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। देखिए बेटा, सबसे पहले दिया है एचआरए। अब एचआरए क्या है, क्यों दिया जाता है, ये तो याद रखिए। एचआरए कम्स अंडर पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस। अब मैं यहाँ पे आपको पूरे पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस समझाऊंगा बेटा। ध्यान से समझिए, ध्यान से इसको सुनिए। हाउस रेंट अलाउंस, इट इज एन अलाउंस गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर फॉर मीटिंग द rental accommodation or for meeting any kind of expenditure which is paid for accommodation by the employee, him or her. So what is given? It is an allowance given by an assessee or to an assessee by the employer to meet the expenditure on payment of rent in respect of residential accommodation occupied by him or her. तो एचआरए दिया जाता है ताकि आप जो घर में रह रहे वो घर का आप अगर भाड़ा भर रहे होंगे तो वो पे करने के लिए आपको एचआरए दिया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप भाड़े वाले घर में ही रह रहे तो एचआरए दिया जाता है। एचआरए इज गिवन टू ऑल एम्प्लॉइज नो मैटर यू आर लिविंग इन योर ओन हाउस और नो मैटर यू आर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। ऐसा कोई कंफ्यूजन मत करना बेटा। इनकम टैक्स सिर्फ रूल देता है। इनकम टैक्स ये देखता नहीं कि आप उस तरह से मतलब एग्जैक्टली एलिजिबल हो या नहीं हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। उन्होंने टैक्सेबिलिटी डिफाइन करके रखी है। टैक्सेबिलिटी के साथ हजारों रूल उन्होंने दिए हैं जो बड़ा क्लियर कट बोलते हैं कि इसको कब टैक्सेबल करना है और कब एग्जम्प्टेड करना है। मतलब इसका सीधा साधा मतलब है एचआरए सबको मिलेगा, बोलते हैं ना, मिलेगा, सबको मिलेगा। और आप खुद के घर में रहते हैं तो भी मिलेगा, आप भाड़े के घर में रहते हैं तो भी मिलेगा, लेकिन एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अलाउंस जरूर मिलेगा। एचआरए यू कैन गेट दो यू मे बी स्टेइंग इन योर ओन हाउस और यू मे बी स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस। तो देखते हैं एचआरए आगे क्या बोलता है। इन केस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, in case an assessee lives in his own house or in an house where for which he or she is not supposed to pay any rent, then the whole amount received by the assessee is fully taxable. That is, the employee doesn't pay any rent, then HRA is fully taxable. तो याद रखिए बेटा, HRA आपको मिला तो सही, लेकिन आप अगर रेंटेड घर में रहते नहीं या रेंट पे नहीं करते, then HRA is fully taxable for you. तो एचआरए हमने भले पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस में लिखा है, लेकिन याद रखना अगर आपको एचआरए मिल रहा है एज एन एम्प्लॉय एंड यू आर लिविंग इन योर ओन हाउस और यू आर लिविंग इन सच हाउस वेयर रेंट इज पेड बाय एम्प्लॉयर, स्टिल यू आर गेटिंग एचआरए, देन एचआरए इज फुली टैक्सेबल अलाउंस। वही बोलता है बेटा ये, दैट इफ एम्प्लॉय डजंट पे एनी रेंट देन एचआरए इज फुली टैक्सेबल। लेकिन आगे देखिए, इफ एम्प्लॉय पेज रेंट देन ओनली एग्जम्पशन इज एप्लीकेबल। मतलब अगर एम्प्लॉय रेंट दे रहा है और उसको एचआरए मिल रहा है तो ये केस में एचआरए इज ट्रीटेड एज पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंस। अब किस तरह से पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जम्प्टेड, वो रूल हमें यहाँ पे दिया बेटा, बड़े ध्यान से देखना। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और प्रैक्टिकल बात है बेटा। इसी तरह से प्रैक्टिकली भी चीजें कैलकुलेट होती है, मतलब ये कुछ थ्योरी वाला पार्ट नहीं है। The following rule is applied to calculate exempted और taxable HRA। नीचे दिए वाला जो रूल है बेटा वो अप्लाई होगा आपको कैलकुलेट करने के लिए कि टैक्सेबल और exempted HRA किस तरह से निकालना है। This rule is given under section 10, 13A and rule 2A। ये रूल कहां पे दिया है? Under section 10, 13A and rule 2A। क्या रूल दिया है बेटा? कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड HRA क्या रूल दिया है हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर HRA। यानी सैलरी का मतलब क्या है? व्हेन वी आर गोइंग फॉर HRA, the meaning of salary for HRA you can see on the screen here. It is basic salary plus DNS allowance, but it should be forming part of salary plus fixed percentage of commission on sales or turnover। अब पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि चलो बेसिक तो क्वेश्चन में दिया होगा, DA भी देते हैं, DNS अलाउंस हमने देखा, लेकिन ये फॉर्मिंग पार्ट का मतलब क्या है? ये फॉर्मिंग पार्ट का मतलब यहीं पे ऊपर समझाता हूं बेटा। अभी मैं फिर से ऊपर जा रहा हूं DA के पास, ताकि DA का थोड़ा सा वाफिकेशन आपके लिए करूं। डू रिमेंबर स्टूडेंट्स,
DA is nothing but an allowance given by the employer to the employee for meeting the cost of inflation, increasing inflation. Inflation बढ़ते रहता है, ये बढ़ता हुआ inflation. Inflation क्या है? The phenomenon of rise in prices. जैसे प्राइसेस बढ़ते जाती है तो आपका अलाउंस बढ़ना चाहिए, तो डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं बेटा, महंगाई भत्ता बोली के बाद फटाक से बत्ती जल जाती है दिमाग में। महंगाई भत्ता इसलिए दिया जाता है ताकि महंगाई के साथ आप काउंटर अटैक अच्छे से कर पाओ। सो डीएनएस दो पार्ट में आता है। अब डीएनएस अलाउंस कितना देगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो ये तो गवर्नमेंट के केस में डिसाइड करता है, प्राइवेट के केस में कोई डिसाइड नहीं करता, ये प्राइवेट एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। लेकिन डीएनएस अलाउंस में दो पार्ट आते हैं बेटा। नंबर वन, सबसे पहला पार्ट जो आता है विच इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग पार्ट, जिसको फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी बोलते हैं बेटा। ये क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, जस्ट गिव मी अ मिनट। एंड सेकंड इज नॉन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। पहला क्या लिखा बेटा मैंने, आप देख सकते हैं फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, और दूसरा मैं क्या लिख रहा हूं, नॉन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। ये क्या होता है, क्यों होता है, लेट मी टेल यू। ये किस तरह से होता है, कहां पे होता है, ये देखते हैं अपन। तो पहला फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, दैट इज डीएनएस अलाउंस, और दूसरा क्या है बेटा, नॉन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। अब ये फॉर्मिंग नॉन फॉर्मिंग का मतलब क्या है? फॉर्मिंग का मतलब है द डीए व्हिच यू विल बी गेटिंग व्हेन यू आर इन सर्विस एज वेल एज आफ्टर योर रिटायरमेंट एज वेल। ऐसा डीए जो आपको आज भी मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद आपके पेंशन में भी मिलेगा, उसको डीए का फॉर्मिंग पार्ट बुलाते हैं। ऐसा है क्या इंसान रिटायर होने के बाद उसको महंगाई नहीं होती? ऐसा तो कुछ है नहीं। So DA which you are getting right now as well as on your retirement is called as forming part of DA। और जो नॉन फॉर्मिंग पार्ट है बेटा, मतलब उसको ये तो सिर्फ आज ही मिलेगा, सर्विस करते हुए मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद नॉन फॉर्मिंग मिलने का चांस नहीं है। अब ये कौन डिसाइड करता है कि कितना पार्ट ऑफ डीए फॉर्मिंग रहेगा, कितना पार्ट ऑफ डीए नॉन फॉर्मिंग रहेगा? तो ये तो एम्प्लॉयर का डिस्क्रिप्शन है बेटा, ऐसा तो इसके लिए कोई रूल नहीं है कि कितना फॉर्मिंग होगा और कितना नॉन फॉर्मिंग होगा। सम टू सम इट कैन वैरी, बट डू रिमेंबर जब एचआरए का कैलकुलेशन करना है तो हमें सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट का डीए कंसिडर करना है, नॉन फॉर्मिंग पार्ट कंसिडर नहीं करना है। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डीए का मतलब क्या है बेटा, द डीए विच द एम्प्लॉय इज गेटिंग while he or she is in service as well as after retirement as well is called as forming part of DA। The same is called as इंटरिंग इंटू सर्विस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरिंग इंटू सर्विस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आप बोलेंगे ये क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद आपको क्या मिलता है बेटा? ऑब्वियसली पेंशन, है ना, ऑब्वियसली ग्रेचुटी, राइट। तो जब आप रिटायर होंगे तब भी ये डीए आपको मिलता रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और एडमिसिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स और इंटरिंग इनटू सर्विस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसी को एडमिसिबल बोलते हैं बेटा, इसी को इंटरिंग इनटू सर्विस बेनिफिट्स बोलते हैं, और इसी को फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डीए बोलते हैं। सो इट इज एडमिसिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब ये आज भी मिलेगा और रिटायरमेंट होने के बाद भी मिलेगा। रिटायरमेंट होने के बाद कैसे मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ ग्रेचुटी एंड पेंशन। तब जब ग्रेचुटी पेंशन निकालेंगे तब आप डीए का फॉर्मिंग पार्ट ही कंसिडर करेंगे, नॉन फॉर्मिंग पार्ट डीए का कंसिडर नहीं करेंगे। और नॉन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी का मतलब क्या है, सीधा नॉन लगाने का है बस, बाकी तो कुछ करने का नहीं है। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मिंग नॉन फॉर्मिंग कितना होगा, दिस इज डिसाइडेड बाय द रेस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। देयर इज नो एज सच रूल कि कौन कितना डिसाइड करेगा, ये तो एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करे बेटा। नॉन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और not entering into service or retirement benefits, or even it is called as not admissible for retirement benefits। तो इसी को NFP बोलते हैं, नॉन फॉर्मिंग पार्ट बोलते हैं, और ऊपर वाले को FP बोलते हैं। FP का मतलब क्या बेटा, फॉर्मिंग पार्ट। तो समझ लीजिए, समझ में आ गया मैंने क्या बोला। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डीए का मतलब सीधा साधा है कि जब आप रिटायर होंगे तो भी ये डीए मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रेचुटी एंड पेंशन, उसमें ऐड किया जाएगा, और जब आप सर्विस करेंगे तो भी ये डीए मिलेगा। तो ऐसे डीए को क्या बुलाते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज डीए फॉर्मिंग पार्ट, डीए एडमिसिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, डीए एंटर्स इनटू सर्विस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और दूसरा वाला जो डीए है बेटा, उसको आप बुलाते हैं नॉन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, नॉट एंटरिंग इनटू सर्विस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और नॉट एडमिसिबल फॉर सर्विस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो उसको आप डीए का नॉन फॉर्मिंग पार्ट बुलाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस एंड एंजॉइंग दिस। अब ये फॉर्मिंग कितना होगा, नॉन फॉर्मिंग कितना होगा, ये तो सम टू सम डिफर करेगा। तो डीए का बाइफिकेशन याद जरूर रखिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे चलते हैं, अब आते हैं फिर से मीनिंग ऑफ सैलरी पे।
तो एचआरए पे हम मीनिंग ऑफ सैलरी देख रहे थे और उसमें आया था बेसिक सैलरी और पे प्लस डीए बट फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल्स और टर्नओवर। तो ये मीनिंग ऑफ सैलरी है एचआरए की, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। मतलब एचआरए कैलकुलेट करने के पहले आपको मीनिंग ऑफ सैलरी निकालना है। मीनिंग ऑफ सैलरी मतलब पूरा सैलरी नहीं है बेटा, तीन ही कंपोनेंट लेने हैं। एक तो बेसिक सैलरी जो क्वेश्चन में आपको दिया है, दूसरा डीएनएस अलाउंस, लेकिन डीएनएस अलाउंस कौन सा, विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर सैलरी, उतना ही डीए आएगा, और तीसरा फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल्स और टर्नओवर। तो ये तीन ही चीजें आएगी इसमें। आगे चलते हैं बेटा, अब डीए का रूल देखते हैं, अभी एचआरए का रूल देखते हैं क्या है। फिर से एचआरए थोड़ा सा रिपीट करता हूं क्योंकि डीए बीच में के आने की वजह से हमारा थोड़ा सा कंसंट्रेशन उधर चला गया। एचआरए इज गिवन बाय एवरी एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर मीटिंग रेंटल accommodation or for paying the rental charges by the employee। ये सारा कंपेंसेट करने के लिए एचआरए दिया जाता है, एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को। बट एचआरए के दो रूल है, बड़े सिंपल है। इफ एन एम्प्लॉय पेज रेंट then HRA is partly taxable and partly exempted which can be calculated under section 1013A and rule 2A। यानी एम्प्लॉय अगर रेंट दे रहा है, उसको अगर एचआरए मिल रहा है, तो उसका कैलकुलेशन पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जम्प्टेड जैसे होगा, और उसका कैलकुलेशन नीचे दिया उस तरह से होगा। लेकिन इफ द एम्प्लॉय इज रिसीविंग एचआरए एंड ही और शी इज लिविंग इन हिज और हर ओन हाउस or in such a house on which rent is not payable by the employee, in such a case entire HRA received by the employee is fully taxable। No calculation is needed into that context। यानी आपको अगर HRA मिल रहा है एज एन एम्प्लॉय, लेकिन आप खुद के घर में रहते हैं या फिर ऐसे घर में रहते हैं जहां पे एम्प्लॉयर ही उसका रेंट दे रहा है, आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है, ऐसे केस में आपका एचआरए पूरी तरह से टैक्सेबल है। गार्ड बांध के रखिए बेटा रूल को। सो दो चीजें हैं एचआरए में, अगर आप रेंट दे रहे हो, एचआरए मिल रहा है, तो इट इज पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जम्प्टेड इफ यू आर एन एम्प्लॉय। सेकंड केस, यू आर एन एम्प्लॉय एंड यू आर रिसीविंग एन एचआरए बट यू आर नॉट पेइंग एनी रेंट, और you are living in such a house on which rent is payable by the employer। In this case entire HRA is fully taxable, no calculation is needed। तो पहला केस देखते हैं बेटा, if employee pays rent, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, 1013A एंड रूल 2A के हिसाब से पहले मीनिंग ऑफ सैलरी निकालना है, जो हमने निकाला बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल्स और टर्नओवर। और आप नीचे देख सकते हैं अब क्या रूल है, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री इज एग्जम्प्टेड। लेकिन ये कब, ये जब आपको एचआरए मिल रहा है और एट द सेम टाइम यू कैन से दैट दिस यू आर नॉट पेइंग एनी काइंड ऑफ रेंट देयर, बीइंग एन एम्प्लॉय आप कोई रेंट नहीं दे रहे। तो ये केस में यहाँ पे किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है देख सकते हैं। लीस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री इज एग्जम्प्टेड। नंबर वन, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। नंबर वन क्या है बेटा, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड आपको कितना है। नंबर टू, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। नंबर थ्री, 50% और 40% ऑफ बेसिक सैलरी। अब ये 50% कब और 40% कब, 50% इफ यू एम्प्लॉय लिव्स इन अ मेट्रो सिटी लाइक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। याद रखिए बेटा, चार ही मेट्रो सिटीज है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता, एमडीसी के। तो ये चार सिटी में रहते हैं तो 50% ऑफ सैलरी लेंगे आप। ये चार सिटी छोड़ के आप कहीं पे भी रहे, पूना, बैंगलोर, हैदराबाद, मैंगलोर, ऑल दीज आर 40% वाले हैं। तो ये 40% नॉन मेट्रो आएगा, 50% मेट्रो आएगा। लीस्ट ऑफ बिलो 3 इज एग्जम्प्टेड बेटा। क्लॉज क्या है, लीस्ट ऑफ बिलो 3 इज एग्जम्प्टेड। नंबर वन इज एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। नंबर टू इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ विच सैलरी, ऑब्वियसली द मीनिंग ऑफ सैलरी माय डियर। और तीसरा रूल है 40 और 50% ऑफ सैलरी। ये 40% किसका है, 50% किसका। आप अगर मेट्रो सिटी में रहते हो तो 50% ऑफ सैलरी लेना है आपको सम के हिसाब से। आपके सम में अगर नॉन मेट्रो दिया है तो उसके हिसाब से आपको 40% लेना है, 40% ऑफ मीनिंग ऑफ सैलरी। ये तीनों निकालने हैं। तीनों निकालने के बाद जो मिनिमम होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज एग्जम्प्टेड एचआरए। ये तीनों में से जो बेटा मिनिमम होगा उसको क्या कंसिडर करेंगे आप, एग्जम्प्टेड एचआरए। और टैक्सेबल एचआरए कैसे निकालते हैं आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, इट इज एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड एचआरए। तो आपका एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड जितना दिया है उसमें से आप एग्जम्प्टेड माइनस करेंगे तो बच्चे वाला आएगा टैक्सेबल एचआरए। तो इस तरह से हमें ये कैलकुलेट करना है। एचआरए के बारे में फिर से चीजें रिपीट करता हूं आपको। एचआरए इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर मीटिंग रेसिडेंशियल अकोमोडेशन चार्जेस। It is given by every employer to the employee, but the taxability of HRA is dependent on two things। HRA की जो taxability है बेटा दो चीजों पे निर्भर करती है। एक, if employee
pays rent, then HRA is partly taxable and partly exempted. और कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इस तरह से करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ सैलरी निकालेंगे, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल्स और turnover. उसके बाद list of below 3 is exempted. Number 1 is actual HRA received which is given in the question. Number 2 rent paid which is given in the question minus 10% of salary, 10% of meaning of salary which you just calculated. Number 3 50 or 40% of meaning of salary, that is in case of metro city you are living it is 50%, non metro city it is 40%. और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं टैक्सेबल एचआरए हमें निकालना है, जहां पे एक्चुअल एचआरए माइनस एग्जम्प्टेड एचआरए हमें निकालना है, फिर आपका टैक्सेबल एचआरए आएगा। और दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट है कि आप एम्प्लॉय है, आपको एचआरए मिल रहा है बट यू आर लिविंग इन योर ओन हाउस और इन अ हाउस विच इज on which rent is paid by the employer, then in such a case no calculation is needed, entire HRA is fully taxable. बताइए बेटा HRA समझ में आया या नहीं? पक्का आना चाहिए। एक सम आपको करके बताता हूँ HRA और EA के लिए, और आसानी से समझ में आ जाएगा आपके कि इसका कैलकुलेशन किस तरह से करना है। दोनों का सम लेते हैं फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान बात है बेटा। यहाँ पे देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस का कैलकुलेशन कैसे करना है ये सबका एक सम मैं बताता हूं आपको, तो आपको उसमें और अच्छे से ध्यान में आएगा कि हाउ एचआरए इज कैलकुलेटेड, हाउ एंटरटेनमेंट अलाउंस इज कैलकुलेटेड। ये सारे अलाउंसेस वहां पे और कैलकुलेट करके बताता हूं। वैसे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 80% जरूर क्लियर है, 20% हाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का पार्ट है, वहां पे थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, जैसे ही सम आता है वहां पे हम ये देख सकते हैं बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस इट शुड बी टेकन एट ग्रॉस वैल्यू व्हाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस सैलरी। मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस का टैक्स कैलकुलेशन कैसे करना है, पहले इसको आज इट इज लेना है, आज इट इज लेना है मतलब ग्रॉस वैल्यू लेनी है इसकी, जितना दिया उतना देना है। एग्जम्पशन कब देना है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) is to be given for the exempted amount of EA from gross salary only for government employee. EA is fully taxable for private employee. 16 कुछ चीज समझ याद आता है बेटा? याद रखिए ये 16 मैंने आपको दिया था ऊपर, दैट इज जब हमने ग्रॉस सैलरी निकाला, ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 किया था या डिडक्शन फ्रॉम सैलरी इनकम किया था, तो यहाँ पे आता है। मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले जब लेते हैं तो एज इट इज उठा लेना चाहिए, नीचे जब डिडक्शन देने की बात आती है तब डिडक्शन देना है एंटरटेनमेंट अलाउंस का। लेकिन उसके लिए एम्प्लॉय क्या होना चाहिए? ये मैंडेटरी है कि एम्प्लॉय सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए बेटा। as long as employee is a government employee then entertainment allowance is fully exempted या fully taxable? No, it is partly taxable and partly exempted. पूरी तरह से exempted नहीं होगा ना पूरी तरह से taxable होगा, क्यों? क्योंकि उसके रूल दिए है। और अगर एम्प्लॉय प्राइवेट है तो ऊपर पूरा लिखो और नीचे डिडक्शन 0 दे दो, क्योंकि entertainment allowance for private employee is fully taxable. So do remember this. As long as employee is private and receiving an entertainment allowance, then entertainment allowance is taken at gross value while calculating gross salary. No deduction is provided further. Why? Because entertainment allowance for private employee is fully taxable. Is such thing applicable for HRA? HRA में ऐसा कुछ आया था बेटा? HRA में ऐसा कोई चेंज नहीं है। एम्प्लॉय गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, दोनों के लिए रूल इज वन एंड द सेम एज फार एज HRA इज कंसर्न। यानी HRA का गवर्नमेंट प्राइवेट ऐसा बाइफरकेशन नहीं है। HRA का बाइफरकेशन क्या है? इफ एम्प्लॉय पेज रेंट देन rule applied under section 1013A and rule 2A, and if employee doesn't pay any rent then HRA is fully taxable. बड़ा सिंपल है, गवर्नमेंट प्राइवेट का HRA में कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना एंटरटेनमेंट में है। तो एंटरटेनमेंट का एग्जम्पशन देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है बेटा ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को एम्प्लॉय रहा तो ही एप्लीकेबल है, प्राइवेट एम्प्लॉय रहा तो एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फुली टैक्सेबल। मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर EA दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस इज बेसिक सैलरी ओनली। याद रखिए मीनिंग ऑफ सैलरी जो है एंटरटेनमेंट अलाउंस की वो सिर्फ बेसिक सैलरी एज फार एज एंटरटेनमेंट अलाउंस इज कंसर्न। अब नीचे देखिए एग्जम्पशन कैलकुलेशन ऑफ EA सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, तो फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनटू ब्रैकेट स्टेट और सेंट्रल। तो आप अगर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, सेंट्रल के एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का एग्जम्पशन आपके लिए अप्लाई करेगा। किस तरह से निकालना है? क्लॉज दिया बेटा, लीस्ट ऑफ बिलो 3 इज एग्जम्प्टेड, लीस्ट ऑफ बिलो 3 इज एग्जम्प्टेड। नंबर 1 एक्चुअली ये रिसीव्ड, नंबर 2 एब्सोल्यूट लिमिट ऑफ ₹5000, एब्सोल्यूट मतलब कांस्टेंट बेटा, ये चेंज नहीं होगा। एंड नंबर 3 20% और 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। 20% या 1/5 एक ही होता है, तो बेसिक सैलरी का निकालना है। ये तीनों लेने बेटा, तीनों में से जो मिनिमम है वो रहेगा आपका एग्जम्प्टेड EA। मतलब ऊपर एंटरटेनमेंट अलाउंस सपोज अगर 1000 रुपए दिया पर मंथ, तो 1000 पर मंथ इंटू 12 साल का आया 12000।
नीचे जब एग्जाम्शन आप निकालेंगे तो पहले ये तीनों क्लॉजेस निकालिए, तीनों क्लॉजेस में जो मिनिमम क्लॉज होगा वो नीचे डिडक्ट कीजिए अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। तो ऊपर का 12 ऐड किया, नीचे 5 माइनस किया सपोज, तो टैक्सेबल आएगा 7000। 5000 का एग्जाम्शन मिलेगा, क्यों? एक्चुअली ये रिसीव्ड 12000 है, एब्सोल्यूट लिमिट मतलब कांस्टेंट अमाउंट 5000 है, कुछ नहीं मतलब पर एनम है। 20% और 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी मान लेते हैं, बेसिक सैलरी आपका 20000 है, तो 20000 इंटू 12 2,40,000 का 20% या 1/5 कितना आएगा 48,000। सो 48,000, 5,000 एंड 12,000, ये तीनों में से लोअर क्लॉज कौन सा बेटा? 5000। तो ऑब्वियसली 5000 को एग्जाम्शन आप देंगे, और फिर ऊपर 12000 आपने ग्रॉस लिखा है, 12 में से 5 माइनस किया तो 7000 टैक्सेबल होगा। दिस इज हाउ द कैलकुलेशन विल बी गोइंग ऑन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। अगेन आई एम क्लैरिफाइंग माय डियर, इट इज 80%। पहला सम जब लेंगे तब ये पूरा और क्लियर होगा कि इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। आई होप यू आर गेटिंग एचआरए एंड ईए, रादर यू आर एंजॉयिंग इट। आप एंजॉय जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि इसी तरह से हमें गवर्नमेंट को टैक्सेस देने हैं। आगे चलते हैं, जर्नी को आगे लेके जाते हैं। आगे क्या है? स्पेशल अलाउंस। तो हमने अभी तक पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जम्प्टेड में कितने अलाउंसेस देखे बेटा? सिर्फ दो, एक हाउस रेंट अलाउंस और दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब हमारे पास क्या है? स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014(2) एंड अंडर सेक्शन 1014(1). तो पहले 1014(2) देखते हैं स्पेशल अलाउंस क्या दिया है। इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया बेटा सबसे पहले, विच इज एग्जम्प्टेड ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। यानी ये 2 चिल्ड्रन को ज्यादा से ज्यादा एग्जम्प्टेड है। आप बोलेंगे सर अगर एम्प्लॉय को 3 चिल्ड्रन है तो, आप बोलेंगे उसको 1 चाइल्ड है तो, आप बोलेंगे उसको चाइल्ड ही नहीं है तो, सारे केसेस डिस्कस करते हैं, हाउ पेशेंस। अब एजुकेशन अलाउंस एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितना देना है, इस पे गवर्नमेंट की कोई मर्यादा नहीं है, और आपको कितने चिल्ड्रन होने चाहिए इस पे भी गवर्नमेंट की कोई मर्यादा नहीं है। हाँ, जब एग्जम्पशन की बात आती है, व्हेन इट कम्स फॉर एग्जम्पशन, देन द गवर्नमेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैज अप्लाइड सर्टेन रूल्स। तो गवर्नमेंट या इनकम टैक्स बोलता है इसमें एग्जम्पशन 2 ही बच्चों का मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, और एग्जम्पशन कितने का मिलेगा बेटा ज्यादा से ज्यादा? ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन इट इज एग्जम्प्टेड। मतलब मैक्सिमम एग्जम्पशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैक्सिमम एग्जम्पशन इज 100 पर मंथ इंटू 2 इंटू 12। सो ज्यादा से ज्यादा एग्जम्पशन आपको मिलेगा 2400 रुपए, इससे ज्यादा एग्जम्पशन आपको मिलने का चांस नहीं है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन अलाउंस। अब आपके केसेस यहाँ पे लेते हैं, अलग अलग केसेस की। 2 चिल्ड्रन हुए तो क्या, 3 हुए तो क्या, 1 हुए तो क्या। याद रखिए ज्यादा से ज्यादा एग्जम्पशन 2 चिल्ड्रन का आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड आपको 2 चिल्ड्रन हो, प्रोवाइडेड आपको एम्प्लॉयर दोनों का एजुकेशन अलाउंस दे रहा हो, तभी ये एग्जम्पशन अप्लाई करता है बेटा। दिस एग्जम्पशन इज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 1014(1) एज स्पेशल अलाउंस, सॉरी 1014(2) एज स्पेशल अलाउंस। उसी तरह से अगला अलाउंस आप देख सकते हैं बेटा, दैट इज हॉस्टल अलाउंस। एंड हॉस्टल अलाउंस कितना दिया जाता है? हॉस्टल अलाउंस एग्जम्पशन इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द common assessees, or you can say that income tax authorities can give the exemption of ₹300 per month per child for maximum 2 children is exempted। यानी हॉस्टल अलाउंस अगर आपको गवर्नमेंट ने दिया, हॉस्टल अलाउंस सॉरी आपके एम्प्लॉयर ने आपको अगर दिया, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जम्पशन कितना मिलेगा? 7200 रुपए। क्यों? क्योंकि 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मतलब 300 इंटू 2 इंटू 12, तो ज्यादा से ज्यादा एग्जम्पशन आपको मिलेगा 7200 रुपए का। इससे ज्यादा एग्जम्पशन आपको मिलने का कोई चांस नहीं है हॉस्टल अलाउंस के बारे में बेटा। अब फिर से केसेस डिस्कस करने कि 3 चिल्ड्रन हुए तो क्या, 1 हुआ तो क्या, 2 हुआ तो क्या, ये जब सम लेंगे तब हम करेंगे बेटा। अभी समझिए हॉस्टल अलाउंस का एग्जम्पशन ज्यादा से ज्यादा आपको कितना मिलेगा? 7200 रुपए। इट इज 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। उसके बाद देखिए बेटा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, दिस इज गिवन फॉर कम्यूटिंग बिटवीन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। ये घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए है। अब इसका कोई एग्जम्पशन अप्लीकेबल नहीं है एज ऑफ नाउ। क्यों? ये सारा क्या करना है, ये सारा आपको डिस्कार्ड करना है। इसको मैं हाईलाइट करके रखता हूं, रेड एज सच। इस पे एग्जम्पशन अभी नहीं है बेटा। दिस एग्जम्पशन इज नो मोर अप्लीकेबल। यू मे बी सेइंग व्हाई। गवर्नमेंट को लगता है कि इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को ऐसा क्यों लगता है? सो लेट मी टेल यू व्हाई गवर्नमेंट थिंक्स दैट वे, दैट इट इज़ नॉट एट ऑल अप्लीकेबल। तो ये अप्लीकेबल क्यों नहीं है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। गवर्नमेंट बोलता है इसके बजाय हम क्या देंगे, इसके बजाय हम देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज़ ऑफ ₹50,000। तो याद रखिए इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं नीचे
दिस डिडक्शन इज नो मोर अप्लीकेबल, ये डिडक्शन अभी अप्लीकेबल नहीं है। आज दिस डिडक्शन इज नो मोर अप्लीकेबल as income tax provides deduction of section 16(1) का डिडक्शन गवर्नमेंट दे रहा है अभी, विच इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के एवज में गवर्नमेंट ने ये डिडक्शन निकाल दिया है। सो दिस डिडक्शन इज नो मोर एप्लीकेबल आज इनकम टैक्स प्रोवाइड्स डिडक्शन ऑफ सेक्शन 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज ₹50,000 पर एनम। ये कितना है बेटा अभी डिडक्शन 50,000 पर एनम है, और ये इसी के एवज में दिया जाता है। मतलब याद रखिए ये सारा पहले काम में था, अब इसको तो उड़ा ही देता हूँ, ऐसी कोई चीज़ अभी एप्लीकेबल नहीं है, इसको उड़ा दिया मैंने। सो ये बोल्ड वाला याद रखिए। तो ये डिडक्शन पहले कभी हुआ करता था ट्रांसपोर्ट अलाउंस का अंडर सेक्शन 10(14)(2), लेकिन आजकल अप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके एवज में गवर्नमेंट बोलता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो 50,000 का, ये डिडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए ज़रूर ट्रांसपोर्ट लगता है, खर्चा लगता है, लेकिन उसके लिए 50,000 का आपके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एजुकेशन हॉस्टल एज इट इज़ है 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल इज 300 पर मंथ per child for maximum 2 children. Last but not least that is transport allowance 10(14)(2) का है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट बोलता है अब इस पे कोई डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसके एवज में हम आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे विच इज कमिंग अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 50,000 पर एनम। तो ये हुआ 5 अलाउंसेस हमने डिस्कस किए बेटा अभी तक। नंबर 1 इज HRA, नंबर 2 इज एंटरटेनमेंट अलाउंस, थर्ड इज स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 10(14)(2), उसमें पहले एजुकेशन अलाउंस आया 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, फिर हॉस्टल आया 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, फिर ट्रांसपोर्ट आया जिसको अभी लेने की जरूरत नहीं है, अब इसको फुल्ली टैक्सेबल लेना है एज इट इज, हेंस ऑन 4th। व्हाई? क्योंकि इसका डिडक्शन अलग से गवर्नमेंट दे रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन के फॉर्म में 50,000 पर एनम का। अभी लास्ट अलाउंस देखते हैं 10(14)(1) का, and then we can close this discussion of partly taxable and partly exempted allowances। देखिए बेटा इसमें 7 दिए हैं, 10(14)(2) में कितने थे? 3, एजुकेशन, हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट। उसमें ट्रांसपोर्ट का रूल चेंज कर दिया। इनकम टैक्स की यही ब्यूटी है बेटा, द रूल्स कीप ऑन चेंजिंग। ऐसा नहीं कि जो लास्ट ईयर पढ़ा है वही वैलिड हो, भले उसमें 10% 15% के चेंजेस हो, लेकिन चेंजेस पढ़ने पड़ते हैं, बजट देखना पड़ता है गवर्नमेंट ने जो दिया और उसके हिसाब से चेंजेस होते हैं, तो उसके हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब क्या है? दैट इज डिस्क्लोजिंग योर सोर्सेस ऑफ इनकम एंड सेइंग दैट टू द गवर्नमेंट कि इतना मेरा इनकम था लास्ट ईयर, इतना मेरा टैक्स बनता है, इतना मैंने ऑलरेडी पे किया, इतना मुझे या रिफंड मिलेगा या इतना मैं और पे करने वाला हूँ, ये खुद से बताना, इसको बोलते हैं इनकम टैक्स फाइलिंग। आप नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स पीछे पड़ जाते हैं। दैट इज हाउ ऑल दीज थिंग्स डज हैपन देयर। नेक्स्ट स्पेशल अलाउंस अंडर 10(14)(1। अब यहाँ पे 7 एक साथ दिए, मतलब काम आपका आसान कर दिया बेटा। 7 में क्या है? सबसे पहले ट्रैवलिंग और ट्रांसफर अलाउंस, सेकेंड डेली अलाउंस, थर्ड कन्वेंस अलाउंस, फोर्थ इज हेल्पर और असिस्टेंट अलाउंस, फिफ्थ इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एकेडमिक रिसर्च और रिसर्च अलाउंस, सिक्स्थ इज यूनिफॉर्म अलाउंस एंड सेवेंथ इज वॉशिंग अलाउंस। याद रखिए बेटा ये सातों अलाउंस फुली टैक्सेबल है या फुली एग्जम्प्टेड है? नहीं, ये है पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्टेड। कैसे डिसाइड किया जाता है? देखिए इसका रूल, 7 अलाउंस के लिए एक ही रूल है, इसलिए सातों को क्लब किया है। फॉर द अबव 7 अलाउंसेस द रूल इज एक्चुअल अमाउंट स्पेंट ऑन सच अलाउंस और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फॉर सच अलाउंस व्हिचएवर इज लोअर ऑफ अबाउट 2 इज एग्जम्प्टेड। मतलब ये सातों का कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है, नीचे दिया होगा, शायद मैं बताता हूँ आपको, नहीं नीचे डायरेक्टली उन्होंने सम दिया है, यहाँ पे बताता हूँ बेटा। लेट्स अज्यूम दैट कि आपको अलाउंस दिया, एकेडमिक रिसर्च अलाउंस गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई इज से ₹60,000 पर एनम। कितना दिया? 60,000 पर एनम। क्या दिया आपको? एकेडमिक रिसर्च अलाउंस। और आगे बोला अमाउंट स्पेंट बाय द एम्प्लॉय फॉर एकेडमिक रिसर्च इज ₹10,000। अमाउंट स्पेंट कितनी है? सिर्फ 10,000। मिली कितनी बेटा? 60,000। तो रूल क्या बोलता है?
For above 7 allowances, the rule is actual amount spent on such allowance or actual amount received for such allowance, whichever is lower is exempted. तो जो मिला वो तो हम sacrifice नहीं कर सकते, तो I can write down ARA academic research allowance कितना मिला, how much is received by the employee, it is received as 60K. अब मिला उसको तो चेंज नहीं कर सकते, उसको as it is लिखना है, less exempted. अब फिर exempted लिखना है. एग्जम्प्टेड का रूल क्या है बेटा? एग्जम्प्टेड का रूल है द अमाउंट रिसीव्ड फॉर सच अलाउंस और द अमाउंट स्पेंट फॉर सच अलाउंस विच एवर इज लोअर इज एग्जम्प्टेड. तो रिसीव्ड कितना है बेटा? रिसीव्ड है 60, स्पेंट कितना है 10, 60,000 और 10,000 दोनों में से लोअर कितना है वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा. तो 60 और 10 में लोअर हुआ 10, तो 10 ही आपका एग्जम्प्टेड अमाउंट रहेगा पहले. लेकिन जितना मिला उसको तो लिखना पड़ेगा, वो बदल नहीं सकते हम. लोगों को लगता है ऊपर का 60 कहाँ से आ गया, अभी जो आपको मिला है उसको तो अपन चेंज नहीं कर सकते बेटा, है ना. तो ARA you got 60, you spent only 10K and rule is saying that actual amount received on such allowance or actual amount spent on such allowance whichever is lower is exempted. तो 60 और 10 को हमने कंपेयर किया और पाया कि 10 कम है तो वही exempted रहेगा. So how much is taxable? Taxable कितना रहेगा बेटा? Taxable will be 50,000. Why? क्योंकि received is 60, spent is 10. 60 और 10 में से लोअर 10 हुआ, इसलिए एग्जम्पशन 10 का और बचे वाला टैक्सेबल. तो ये इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा. एकेडमिक रिसर्च अलाउंस आपको मिला 60,000, एग्जम्प्टेड हुआ 10,000 और टैक्सेबल हुआ 50,000. अब और एक रूल उन्होंने दिया है जो बड़ा माइन्यूट है, छोटा है. क्या है? नोट इफ एक्चुअल अमाउंट स्पेंट इज नॉट गिवन फॉर अबव 7 अलाउंसेस, यानी ऊपर दिए वाले जो 7 अलाउंसेस है उसमें अगर अमाउंट स्पेंट नहीं दिया, देन इन दैट केस देन इट इज अज्यूम्ड दैट given amount of allowance itself is spent amount and hence it is fully exempted from tax. ये 7 अलाउंसेस के केस में अगर आपको अलाउंस की अमाउंट दी है लेकिन स्पेंड कितना है ये नहीं बोला है, ऐसे केस में माना जाता है कि अलाउंस अमाउंट इटसेल्फ इज स्पेंट अमाउंट, हेंस इट इज फुली एग्जम्प्टेड. यानी आपको ARA एकेडमिक रिसर्च दिया 60 लेकिन स्पेंड कितना है बोला ही नहीं, तो ऐसा मानते हैं केस में कि स्पेंड भी 60 है, तो स्पेंड भी 60, गिवन भी 60, दोनों में से लोअर भी 60, तो 60 माइनस 60 टैक्सेबल विल बी 0. तो दिस इज द रूल फॉर दीज 7 अलाउंसेस माय डियर. अब इसका जब एक सम लेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी. याद रखिए स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 10(14)(1) रूल है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन सच अलाउंस और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड ऑन सच अलाउंस व्हिचएवर इज लोअर इज एग्जम्प्टेड. लेकिन पहले जितना मिला है उतना लिखना पड़ेगा और फिर जो मिला है और जो स्पेंड किया दोनों में से लोअर लेना है और वो एग्जम्प्टेड में डाल के टैक्सेबिलिटी निकालनी है. आई होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर. पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जम्प्टेड में हमने देखा HRA, फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस, फिर स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 10(14)(2) जिसमें हमने पहले देखा एजुकेशन अलाउंस, फिर हॉस्टल अलाउंस, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस और आखिरी में हमने देखा स्पेशल अलाउंस अंडर 10(14)(1) जिसमें 7 अलाउंस पड़ते हैं, ट्रैवलिंग और ट्रांसफर, डेली, कन्वेंस, हेल्पर और असिस्टेंट अलाउंस, एकेडमिक रिसर्च और प्रोफेशनल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म एंड वॉशिंग अलाउंस where rule is actual amount received for such allowance or actual amount spent for such allowance whichever is lower is exempted. ये सातों अलाउंस के केस में और एक रूल है कि if actual amount spent is not given for these 7 allowances then amount given for such allowance is considered as spent amount and hence it is fully exempted from tax. I hope you are enjoying the allowances there. अगले लेक्चर में इसके 2 सम सॉल्व करेंगे बेटा जिससे आपके रूल पूरे क्लियर हो जाएंगे. लेकिन लेक्चर पूरा कंटिन्यूअसली देखना है, माइन्यूटली देखना है, जहाँ पे डाउट है लिख के रखना है, तभी जाके इनकम टैक्स समझ में आता है और आप खुद के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. सो विद दिस वी आर कंक्लूडिंग द लेक्चर. थैंक you for your patient listening, and in the next lecture absolutely we will be applying all these allowances and you'll be enjoying them. Thank you. Have a wonderful day ahead and God bless you. Bye bye.